माझं तर चालू आहे.
Right, hi everyone, good evening. Alright, so आज खूब फिजिक्स में पढ़ाई करी आप लोगों ने. कौन सा टॉपिक चल रहा है फिजिक्स में आप लोगों का? रोटेशन. ओह माय गॉड. केमिस्ट्री में आयोनिक, फिजिक्स में रोटेशन और मैथ्स में हाइपरबोला फंक्शंस. चलो, टफ टाइम अहेड. सारे टॉपिक थोड़े डिफिकल्ट हैं. It requires extra dedication from your side to focus on these current topics. I hope no one is actually deprioritizing the current topics and sitting and trying to remove their backlogs over and above what is happening in the current chapters. All right. So doubt discussion nahi hai exactly, like we are going to study as well, but doubt discussion का part मैं इसलिए रखना चाह रहा था because just wanted to get a quick sense of how we have done in this chapter. Okay, what are the scenarios that we have worked on, and based on that आप लोगों को कितना याद है, कितने अच्छे से आप होमवर्क कर पाए. Right, so let's take a quick check of all the pH calculation scenarios that we had worked on. Right, so starting with the strong acid solution, strong base solution. Right, इसमें we just focus on the concentration of H plus or OH minus ion coming from these acids or base, and ignore water if these approximations are working. Right, when you come across solutions like strong acid plus strong acid या strong base plus strong base, ये mixing word सुन के आपके कान खड़े हो जाने चाहिए. Right, because this mixing word brings in a lot of careless mistakes. Right, after mixing जो concentration होगी volume का ध्यान रखते हुए, we need to come up with that as the final answer and then calculate pH or pOH. ठीक है. स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सोल्यूशन वाले क्वेश्चंस में भी जब रिएक्शन होता है, ठीक है, सो वी नीड टू फोकस ऑन द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, अगेन रिमेंबर, डोंट फॉरगेट दैट मिलीमोल्स में तो आप एनालिसिस करोगे ही सही. ठीक है, रिएक्शन H प्लस एंड OH का होगा एंड उसका आप मिलीमोल एनालिसिस कर लोगे. बेटर रहेगा कि मिलीमोल एनालिसिस करो ताकि आपको केयरलेस मिस्टेक्स नहीं हो. एंड देन फाइनल कंसंट्रेशन के ऊपर फोकस करना, वेदर इट विल बी एन एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन, एंड देन कम अप विद द आंसर. देन हम लोगों ने वीक एसिड सॉल्यूशन का डिस्कशन किया था एंड उसमें प्राइमरीली हम लोगों ने वीक एसिड में ऐसे एसिड्स का डिस्कशन किया था विच वर मोनोप्रोटिक इन नेचर. ठीक है, so monoprotic weak acids में we had done this question wherein you had H plus or we had this formula of H plus and alpha, and these formulas are quite easy to remember and apply in questions, but they are only valid when both these approximations are valid. Right? If one of the approximation isn't valid, then we had learned how to go about solving the questions. Right? Then this formula won't be applicable. You will have to solve by the basics. And the same happened with the weak base solution as well. Right? Weak base solution में these formulas can be like taken in an analogous manner. कि H plus की जगह OH minus आ जाएगा and it will be equal to under root of Kb into C. Right? And alpha, which is the degree of ionization या degree of dissociation, will be equal to root Kb upon C.
राइट. देन आफ्टर डूइंग दीज सिनेरियोज, मैंने आप लोगों को होमवर्क में काफ़ी सारे क्वेश्चंस फ्रॉम द बुकलेट ट्राई करने को दिए थे, ठीक है. एंड उनके ऊपर हमने कुछ डिस्कशन भी किया था. पोस्ट दैट इन द प्रीवियस क्लास वी went ahead and discussed polyprotic weak acid solutions. ठीक है. इसमें अगर सिर्फ pH कैलकुलेशन करना होता है तो बहुत ही सिंपल शॉर्ट मेथड है, that you only focus on the first step and based on that apply the formula, get the answer. बट अगर आपको बाकी आयंस की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी कैलकुलेशन करनी है, then you will have to go in a step by step manner, solve the simultaneous equilibrium, take the relevant approximations and then come up with the answers, right? This was something that we had done in the last class, right? Based on this I hope आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करने में समझ में आया होगा, हाउ टू गो अबाउट वर्किंग ऑन देम. ठीक है. हाँ, हो सकता है कुछ डाउट्स हो, डेफिनेटली गो अहेड एंड आस्क. मैं एक बार फोर्स म्यूट हटा देता हूँ, तो आप लोग अपने हिसाब से अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो. All right, so based on the homework that I had given, I think एक राउंड ऑफ डिस्कशन हुआ था कि नहीं हुआ था? यस सर, हुआ था. यस सर. ठीक है. तो लास्ट क्लास के बाद तो मैंने आई थिंक होमवर्क नहीं दिया था आप लोगों को. नो सर, नहीं दिया. यस सर, नहीं दिया था. नहीं दिया था ना. ठीक है. बिकॉज लाइक हमने एक ही ये वीक एसिड पॉलीप्रोटिक का ही सिनेरियो पढ़ा था. हम लोगों को थोड़े से और सिनेरियोज पढ़ने की ज़रूरत है, so that we are in a good position to answer questions. ठीक है. Although you can start off with one question, which is, let's say, this question. ठीक है. This is a question for you in which we have a polyacidic weak base. ठीक है. And इस क्वेश्चन में, हाँ, Yash, आपके questions will get answered after the subtopics that I'll teach today. Okay, there are certain subtopics which I will teach today, तो उसके बाद में you should be able to get a grip on those questions. हाँ, थर्मो के TWT में भी कुछ डाउट है, देख लेंगे. एक बार मैं पढ़ा लेता हूँ आज का टॉपिक एंड देन टुवर्ड्स द एंड वो थर्मो की TWT भी आपके एड्रेस कर लेंगे. ठीक है. अभी इस क्वेश्चन को ट्राई करो. सो यू हैव अ लाइक कंपाउंड इन फ्रंट ऑफ यू, इथाइलिन डायमाइन. तो इसके अंदर ये दो NH2 ग्रुप हैं विच कैन एक्सेप्ट H+. राइट. नाउ इसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, इथाइलिन डायमाइन एक्सेप्टिंग 1H+, देन इथाइलिन एक H+ एक्सेप्ट करने के बाद में दूसरा H+ एक्सेप्ट कर रहा है, फॉर्मिंग EnH2 2+. इन दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb1 Kb2 आपको दिया हुआ है. ठीक है. एंड इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स आपसे बोले जा रहे हैं निकालने के लिए. एक तो pH निकालना है. सर मैं नया हूं ना, तो मेरे को ये पता नहीं कौन सा टॉपिक है. सर कैन यू टेल द टॉपिक? आयोनिक इक्विलिब्रियम. सर इसके पहले और क्या क्या हुआ था? नहीं, अभी मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है. यू एड्रेस दीज क्वेश्चंस आफ्टर द क्लास. ओके. देन सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन is something which is asking you to calculate the EnH2 2+ का concentration. ठीक है. So based on these two concentrations, these two questions, आप लोग solve करना start करो. ठीक है. In fact जो पहला part है उसके लिए you can be a bit faster. You don't need to really go through all the मेहनत. But second part के लिए आपको जाना पड़ेगा. Like पूछा ही है कि ये जो कंसंट्रेशन है वो निकालना ही है, तो आप देखो क्या आंसर आ रहा है, देन लेट मी नो.
Sir, I have sent you hi on the WhatsApp number you gave me. हाँ मैं तुम्हें ऐड कर रहा हूँ ग्रुप पे, वेट करो. Thank you, sir. ऑलराइट, पहले पार्ट का आंसर आया. पहले पार्ट के लिए आई वुड सिंपली जस्ट डू दैट OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू रूट Kb1 into C. ठीक है, I'll ignore the second step and be very quick about it. ठीक है, if you do that, you should definitely get the correct answer. But B पार्ट के लिए अब थोड़ा सा मेहनत जरूर करना पड़ेगा. चलो बताओ फटाफट B पार्ट का. आयुष एंड यश seems like आपका आंसर करेक्ट है.
ऑलराइट, सेकंड पार्ट का आंसर हाँ, करेक्ट आयुष, करेक्ट यश, करेक्ट प्रथमेश. राइट, सो यू गो इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर. ठीक है, तो ए पार्ट का तो लाइक शॉर्ट सॉल्यूशन फटाफट था. ठीक है, ऑफ कोर्स दो स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग विद द लॉग कैलकुलेशंस स्टिल, राइट, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना आपको जरूरत रहेगा. एंड देयर विल बी एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू कम, राइट, दैट हाउ टू डील विद सच लॉग कैलकुलेशंस. ठीक है, जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो थोड़ा बहुत हेल्प मिल ही जाता है. ठीक है, अच्छा, सेकंड पार्ट के लिए आप यहाँ पे नोटिस करोगे, हाँ, log 8.5 थोड़ा ट्रिकी हो गया. log 8.5 will not be a value which will be expected from you, कि ये तो पता ही होगा. ठीक है, तो इसका एक वैल्यू या तो क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको, राइट, और इफ इट इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देन आप थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो. लाइक log 8.5 की जगह आप log 8 या log 9 का वैल्यू पुट करके लाइक क्लोज इनफ आंसर निकाल सकते हो. ठीक है, कोशिश कम से कम करो कैलकुलेटर यूज करने की. हम log 8.5 को अगर 10 तक ले लें तो फिर वो 1 अप्रोक्सीमेटली 2.5 पर आधा हो जाएगा ना, मतलब 3 माइनस हाफ इंटू log 8 मैं करूंगा. अब log 8 तो मुझे पता है कैसा रहता है, इट इज 3 टाइम्स log 2, राइट, सो 3 माइनस 1/2, 3 इंटू 0.3, राइट, तो ये यस सर, वो भी ऐसा कर सकता हूँ. या फिर अगर मैं log 9 लिखना चाहूँ तो log 9 भी कैसा रहेगा, इट विल बी 2 टाइम्स log 3, राइट, सो 2 इंटू 0.48. तो उन दोनों के बीच में कुछ वैल्यू लेकर मैं बढ़ सकता हूँ ना. और फिर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ना, ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं. अगर ऑप्शन दूर दूर है तो आप फिर log 10 भी लेके कर सकते हो, अगर ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं तो. यस. बी पार्ट के लिए अब आप देखोगे, बी पार्ट के लिए लाइक यू हैव टू कैलकुलेट द दिस थिंग का कंसंट्रेशन. तो आप कैसे वर्कआउट करोगे? अब आपको दोनों इक्विलिब्रियम लिखने पड़ेंगे. ठीक है, यहाँ पर आप शुरू करोगे C 0 देन C माइनस एक्स, एक्स एंड एक्स, एंड देन दिस इज x, फिर x माइनस y, y एंड y. Then you make sure that the common ion concentration is same throughout. So एक तो OH minus common है, right? तो इसका concentration same करना है. एक ENH plus common है, इसका concentration same करना है throughout. And then you go about solving. Once you have made that concentration same throughout, then you go about solving the two equations using the, or two variables using the two equations KB1 and KB2. Now you can take this approximation. This was something that we had learned in the last class, that x will be much greater than y, because you can neglect the second step. Also because alpha is much less than 1. ठीक है, ये जो पहले स्टेप में c से x निकला है, राइट, वो भी काफी छोटा रहेगा. ये अल्फा जो है, ये अल्फा x अपॉन c है ना, यानी कि x is much लेस देन c का अप्रोक्सीमेशन मैं ले सकता हूँ. Once I do that, I am able to get the value of y and x quite easily, and the value of y comes equal to KB2, which is 7.1 into 10 की पावर माइनस 8. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्लिक किया, सबको समझ में आया कैसे करना है? Yes. ठीक है, ऑलराइट, सो नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ मूव करते हैं. सो नेक्स्ट सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ यू is a strong acid plus weak acid solution. इसके पहले आपने strong acid solution अलग से पढ़ा हुआ है. ठीक है, एंड अगर strong acid plus strong acid मिला दें तो कैसे डील करना है वो भी आपको आता है. ठीक है, आपने weak acid solution भी अलग से पढ़ा हुआ है. ठीक है,
But if say you have a strong acid plus weak acid solution, then how do you go about dealing with it? Right? That is something which you need to now answer. So अब इसमें आप कैसे सोचोगे, क्या कैसे वर्कआउट करोगे? तो होता ऐसा है कि दो टाइप के केसेस बन जाते हैं. Right? There is a very high chance, which is what happens in most of the cases, that you can ignore the weak acid. Why you can ignore the weak acid? Because weak acid का अल्फा वैसे ही कम होता है, ठीक है, वैसे ही ये थोड़ा सा H प्लस देता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड से ऑलरेडी H प्लस आ रहा है, तो कॉमन आयन की वजह से इसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो इससे आने वाला H प्लस और कम हो जाएगा. So there is a high chance that you could just ignore the weak acid and do the calculation as per just the strong acid only. However, there may be some scenarios, ठीक है, अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना रहा, ठीक है, which typically doesn't happen in mains level, ठीक है, it is something which can happen at an advanced level question, that you find a question जिसमें डेटा ऐसा दिया हुआ है that weak acid को इग्नोर नहीं कर सकते, right? तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? How will you come to know? Well, maybe you can take an attempt and then we can think about it. So एक तरफ डेटा आपके सामने दिया हुआ है that HCl का concentration 0.1 मोलर है and acetic acid का concentration भी 0.1 मोलर है and उसका Ka भी दे दिया है. Whereas in the second column HCl का concentration आप नोटिस कर रहे हो तो काफी कम है, 10 की पावर -4 मोलर है, एंड एसिटिक एसिड का 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ. तो आप क्विकली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो व्हेन वी कैन इग्नोर, व्हेन वी कांट इग्नोर? सो यू जस्ट डू अ क्विक सेंस चेक of how much H plus will be coming from either of these acids, right? Now since HCl is a strong acid, तो वो तो पूरा का पूरा डिसोसिएट होके H plus देगा, right? जो वीक एसिड है वो पार्शियली डिसोसिएट होकर, ठीक है, H plus देगा, and वो भी because of common ion effect it will be lesser than what it would give if it was only the weak acid in the solution, right? Only weak acid का आपने को एक approximated formula आता ही है √KAC, और अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि उससे आंसर 10 की पावर -3 मोलर है, राइट? सो इससे कमी H प्लस वीक एसिड से आएगा, तो यहाँ पर यू कैन क्लियरली इग्नोर द वीक एसिड फ्रॉम द so you can ignore the H plus from the weak acid. The total H plus concentration will be from strong acid only, and as a consequence you can get the answer that pH will be 1. ठीक है, अब यहाँ राइट हैंड साइड में आप नोटिस करोगे तो HCl का concentration ही बहुत छोटा था. It was 10 raised to the power of -4 molar. So the H plus coming from that is a small value only, and the H plus coming from weak acid, had it been only weak acid, तो √KAC से हम अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, ऑल्दो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से उससे कम होगा, राइट? सो अब इस केस में ऐसा लग रहा है कि वी कांट इग्नोर द वीक एसिड. तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वेल, देयर इज नो फॉर्मूला, यू विल हैव टू गो बाय द बेसिक्स. एक चांस लेना चाहोगे? वुड यू वांट टू टेक एन अटेम्प्ट एट ट्राइंग टू कम अप विद द आंसर? Yes, sir. चलो कोशिश करो.
ऑलराइट, कुछ बना आप लोगों का? राइट, दोनों इक्विलिब्रियम लिख दोगे। HCl का तो कंप्लीट डिसोसिएशन है, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 आ जाएगा। ठीक है, एसिटिक एसिड में आप कैसे करोगे? ये 0.1 है। ठीक है, अगर आपको H+ लिखना है, नहीं लिखना है तो भी चलेगा, लाइक यू कैन जस्ट डू दिस थिंग 0.1 0 0 0.1 minus x and x, and then we have to ensure that H+ which is common throughout is consistently written, right? Once you have that in place, then you can solve for the value of x using k, right? So you go ahead and write down k is equal to H+ into CH3CO minus upon CH3COH, and then you can use an approximation that x is much less than 0.1, then solve for it, and quadratic banega, and yes, correct है आपका आंसर यश। The pH comes very close to 2.94. ठीक है, समझ में आया बाकी लोगों को ये? It's not a bad quadratic, please. It's a fairly doable quadratic. कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया अमन? बोलो बोलो, स्पीक अप। ये यहाँ तक ये इक्वेशन बनाना आ गया। राइट, अब इसके बाद में आपको अप्रोक्सीमेशन लेना है नहीं लेना है आपकी इच्छा है। ठीक है, you can choose to not even take these approximations, I don't mind. ठीक है, all you have in front of you is a quadratic, go ahead and solve it. ठीक है, I just try to make that quadratic a little bit easier by knowing the fact that x का जो वैल्यू है वो 0.1 से काफी छोटा आएगा। ठीक है, एंड वो मुझे इसलिए स्ट्राइक कर जाता है बिकॉज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, थोड़ी प्रैक्टिस है आपके लिए। दैट इज गोइंग टू कम विथ प्रैक्टिस ओनली, देयर इजंट एनी शॉर्टकट। नहीं, you need not remember this approximation. This was the approximation which we had taken time and again, that alpha is much less than 1. ठीक है, अगर मैं यही चीज, ठीक है, लेट मी डू दिस थिंग फॉर यू, अगर मैं यही चीज ऐसे लिख देता rather than you know, let me copy this over here. ठीक है, मैं यही चीज अगर अल्फा के टर्म्स में लिख देता तो आपको शायद थोड़ा जल्दी स्ट्राइक कर जाता। ठीक है, सो ये इस तरीके से HCl का इक्विलिब्रियम हुआ, फिर ये 0.1 1 माइनस अल्फा, 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा, राइट, एंड देन वी विल मेक श्योर दैट H+ का कॉन्सेंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट, एंड देन विल सॉल्व फॉर अल्फा यूजिंग k। k क्या हो जाएगा, 0.1 अल्फा प्लस 10 की पावर -4 into 0.1 अल्फा अपॉन 0.1 into 1 माइनस अल्फा। ये 0.1 कैंसिल आउट हो गया, अल्फा मच लेस देन 1 का अप्रोक्सीमेशन आपको स्ट्राइक करेगा। आप लिखोगे इसको एज 0.1 टाइम्स अल्फा प्लस 10 की पावर -3 into अल्फा अपॉन 1, एंड ये k का वैल्यू जो भी दिया हुआ होगा, कितना दिया हुआ है, 10 की पावर -5, राइट, तो ये कट होके 10 की पावर -4 हो जाएगा, और अब आप सॉल्व करोगे। ठीक है, हाँ, और अगर गलती से आप कोई गलत अप्रोक्सीमेशन ले भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको वैलिडेट तो हमेशा करना ही है। ठीक है, मान लो इसमें मैं ये एक अप्रोक्सीमेशन ले लेता, ठीक है, जैसे ये वाला अप्रोक्सीमेशन ले लेता,
that x is much less than 10 की पावर -4, राइट? या फिर मैं यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेशन ले लेता कि यार मेरे को क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करने का मन नहीं है, यहाँ तक मैं आ गया हूँ 10 की पावर -4 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 10 की पावर -3 इंटू अल्फा, ठीक है? Let me take approximation that alpha is much less than 10 की power -3. So I will write 10 की power -4 is equal to 10 की पावर -3 into alpha, right? तो अल्फा कितना आ गया 10 की पावर -1, right? Is it much less than 10 की पावर -3? The answer is definitely no. तो ये अप्रोक्सीमेशन गड़बड़ हो गया, आपके पास कोई चारा ही नहीं है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो और आगे बढ़ो, ठीक है? समझ में आया? All right. Now, this was, as I said, this was a relatively difficult question. This is more from the perspective of advanced. Okay? Otherwise, you can simply ignore weak acids and do the questions. Okay? All right. Now, आप 5% तक इग्नोर कर सकते हो यश. 5% is a fairly okay to work on. ठीक है? Now, let me take you through one more question. Okay, but this would be a slightly difficult one. In fact, let me take you through a relatively easier question first, and let's see if you are able to answer that first. All right, इस question का आंसर बताओ. हाँ, शुभम का और दिशा का करेक्ट है. श्रेयांश, आपने एक केयरलेस मिस्टेक कर दी है. हाँ, सॉन्टी आपका भी करेक्ट है, राइट? जैसे मैंने बताया ना, मिक्सिंग वर्ड सुन के क्या हो जाना चाहिए, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए.
because you Nice drawing. need to account the final concentration. ठीक है, HCl concentration after mixing. ठीक है, वॉल्यूम डबल हो जाएगा ना. जीरो पॉइंट टू अपॉन 0.2 into 100 upon 100 plus 100, right? That is 0.1 molar. ठीक है, and CH3COOH का concentration will be also 0.1 molar. ठीक है, now ignore the weak acid. ठीक है, यहाँ पर given these concentrations similar to what we had seen ऊपर, ठीक है, you can ignore the weak acid and come up with the answer that the total H plus concentration will be equal to 0.1 molar or the pH will be equal to 1. ठीक है, आयुष समझ में आया कहाँ मिस्टेक कर रहे हो? Yes, sir. तुम्हें समझ में आया अमान? तुम तो दो मिस्टेक कर रहे हो. ऑलराइट, चलो ठीक है. नहीं समझ में आया? बाकी लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो. ठीक है, दिस इज अ ट्रिकी वन. दिस इज अ pretty tricky question. If you are able to get it, तो बहुत अच्छी बात है. But if not, then let's see कैसे करना है. हाँ, क्या नहीं समझे अमन ऊपर वाले क्वेश्चन में? मिक्सिंग हुई है ना, HCl कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा ना. 100 ml HCl का सोल्यूशन था एंड 100 ml एसिटिक एसिड का ही सोल्यूशन था. जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो वॉल्यूम डबल हो गई ना, यानी कि कंसंट्रेशन तो हाफ हो गया. ठीक है, ये जो 0.2 मोलर था वो तो बिफोर मिक्सिंग कंसंट्रेशन थी. वॉल्यूम डबल्ड अपॉन मिक्सिंग, राइट? यही तो ट्रैप था इस क्वेश्चन में.
नहीं आयुष, हो सकता है यश आपका क्लोज इनफ हो, बट नॉट 100% श्योर। हाँ, कुशल आपका आंसर मुझे करेक्ट लग रहा है। नहीं, एक मिनट, लेट मी जस्ट थिंक। नहीं नहीं, यश का ज्यादा क्लोज है, नहीं कुशल। मैंने किया हुआ है ना ये क्वेश्चन पहले, इसलिए मैं हवा में कर पा रहा हूँ। मतलब ठीक है, मतलब प्रैक्टिस के बाद में आने लग जाती है चीजें। मतलब आई एम पास दैट स्टेज ना, जहाँ पर यू आर इन दैट स्टेज जहाँ पर यू डोंट नो हाउ टू अप्रोच, एंड आप स्टेप 1 लिखते हो, ठीक है, उसके बाद आपको शायद स्टेप 2 स्ट्राइक करेगा, ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप स्ट्राइक करेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब आई एम एबल टू डू आयोनिक के क्वेश्चंस ऐसे ही हवा में, ठीक है। इनफैक्ट आई डोंट प्रेफर टू डू क्वेश्चंस हवा में बिकॉज दे आर प्रोन टू देन केयरलेस मिस्टेक्स। इवन इजी क्वेश्चन भी आता है तो मेरे को तो जब तक पेन नहीं चलाने को मिलता है आई फील डिस्कम्फर्ट। हाँ सत्य, आपका आंसर भी गुड इनफ है। हाँ ठीक है, करेक्ट है पूर्णा। समर्थ, आपके में एक पावर की गड़बड़ हो रही है बस, बाकी लुक्स गुड इनफ। नहीं एक्चुअली आपका भी ठीक है। हाँ, सत्या आपके में 200/100 नहीं, ठीक है, आपका भी ठीक है, आप भी ऐसे ही बोल सकते हो। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर वुड बी, तो आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, तो आई विल टेल यू 10 की पावर -21, 10 की पावर -22/4, 10 की पावर 0.25 into 10 की पावर -14, और यू कैन से 2.5 into 10 की पावर -15 मोलर, ठीक है। कैसे निकाला, अब यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है। इट वाज अ रियली डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो बच्चे ये क्वेश्चंस कर पाए हैं तो इट्स रियली गुड, यू आर एक्चुअली एबल टू गेट द क्वेश्चंस क्वाइट वेल, thoroughly conceptually, ठीक है। अदरवाइज इट्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव बीन डूइंग। दिस इज अ क्वेश्चन इन विच आप नोटिस करोगे तो पीएच नहीं कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। रादर यू हैव बीन गिवन द H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, दैट दिस इज द H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड नाउ यू नीड टू वर्क ऑन द H2- का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, इफ आई थिंक कॉन्सेप्चुअली, HCl ने अपना इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करा होगा, H2S ने अपने दोनों स्टेप्स एस्टैब्लिश करे होंगे, एंड जो H+ है इन सब स्टेप्स से जो मिल मिला के आया है, दैट इज व्हाट इज गिवन एज द concentration in the solution, ठीक है। नाउ अब व्हाट आई रियलाइज इज दैट इफ आई लुक एट K1 का एक्सप्रेशन, K1 के एक्सप्रेशन में H+ दिया हुआ है, HS- नहीं दिया हुआ है, H2S दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं HS- कंप्यूट कर सकता हूँ। एंड K2 के एक्सप्रेशन में H+ दिया हुआ है, H2- मुझे निकालना है, और HS- मैं फर्स्ट स्टेप से
निकाल कर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो मेरा अननोन S2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा. Or you could have done in the same way like we generally do questions, like ये x और x, फिर ये c minus y, y and y, and then y minus z, z and z, and then you could have gone about and solved x, y and z and took the approximations. That would have also got you the answer, but it would have been a slightly cumbersome exercise. ये वाला तरीका समझ में आया जो मैंने अभी पहले डिक्टेट किया आपको? Yes, sir. अमन, समझ में आया तुम्हें? अरे क्या बात है, एक बार में आ गया, ऐसे कैसे यार? चलो बढ़िया है. All right, now let's look at one more scenario in the acid world, which will be weak acid plus weak acid solution. ठीक है, अब ये weak acid plus weak acid solution इसको सॉल्व करने का फंडामेंटल बेसिक तरीका मैं आपको दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, बट रादर देन दैट what I would advise is that remember the formula. It is fairly easy to remember formula, something which doesn't require a lot of effort, and that will be a much faster way to answer such questions. Although if you want, I can take you through the derivation as well and help you understand how we arrive at that formula. Okay, but first let's focus on the formula. So let's say if you have a weak acid plus weak acid solution, एक वीक एसिड है जिसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 है. दूसरा वीक एसिड है, उसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है एंड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट K2 है. Then the H plus concentration that you can remember is going to be whole under root of C1 K1 plus C2 K2. Okay. Now this formula is of course subject to certain approximations. One is that we can ignore water, and the other is that both the acids ka alphas are much less than 1. Okay. Now this is something if you would want तो हम लोग डेरिवेशन भी देख सकते हैं, बट बेटर है कि आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखो. इसमें एक ट्विस्ट आ जाता है कई बार क्वेश्चंस में, ठीक है, वेयर इन वाटर बिहेव्स लाइक अ थर्ड वीक एसिड, लाइक यू कांट इग्नोर वाटर से आने वाला H प्लस, तो कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन एक्सटेंड दिस फॉर्मूला फॉर 3 वीक एसिड्स ऑल्सो, C1 K1 प्लस C2 K2 प्लस C3 K3. अभी वाटर का C इंटू K KW होता है, ये आपको पहली क्लास में बताया था. डू यू रिमेंबर दैट? Yes, sir. वाटर का C इंटू K इज इक्वल टू KW. तो यहाँ पर वाटर को एज अ थर्ड एसिड ट्रीट करते हुए ये आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो. ठीक है. नाउ बिफोर आई गेट इनटू द डेरिवेशन ऑफ इट, लेट मी आस्क यू टू अप्लाई दिस इन अ क्वेश्चन और टू. ठीक है, सो मैं जूम आउट कर देता हूँ and you have the formula in front of you. Get me the answer to this question.
ऑलराइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन हुआ है फॉर्मूला का. So 1 into 10 की पावर minus 5 plus 4 into 10 की पावर minus 5 upon 2. So 2.5 into 10 की पावर minus 5 और 25 into 10 over 10 5 into 10 की पावर minus 3 minus log 5 2.3. हाँ ठीक है. शिवांक एंड प्रत्याशा आपका आंसर करेक्ट है, यश आपका गलत है. वापस से यही केयरलेस मिस्टेक करी है आपने. मिक्सिंग वाले पार्ट को लेकर आपने ध्यान नहीं दिया. कौन सा HP कौन सा HA? ठीक ही तो है. 2 वीक एसिड है, एक HA और एक HB है. बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, दिशा आपका आंसर करेक्ट है. Right, 2.3 is the correct answer. राइट, इसका डेरिवेशन देखना है आप लोगों को, कैसे आ रहा है ये. As such, it comes from the same set of लॉजिक जो हम लोग अभी अप्लाई करते हुए आ रहे हैं. ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में चलो आपको डेरिवेशन देखने को मिल जाएगा. ठीक है. अच्छा, वीक बेस प्लस वीक बेस हुआ तो उसके लिए हम लोग इस तरीके से जाएंगे. OH माइनस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KB1C1 plus KB2C2 plus KW. ठीक है. Now if you want to take a look at the derivation, then here is this question for you. एसिटिक एसिड बेंजोइक एसिड का सोल्यूशन बना रहे हैं हम लोग, एंड उसमें हमें इट्स नॉट जस्ट H प्लस आयन बट एसिटेट और बेंजोएट आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी निकालने को बोला जा रहा है. तो फिर तो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. ठीक है, वी कांट जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट H प्लस. हमें बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी. तो शुरू हो जाते हैं. हाँ यश, वर्क करो चलो इस क्वेश्चन पर.
ऑलराइट, कुछ समझ में आया? ये सॉन्टी ने तो आंसर भी कर दिया है. Let's see. I am not sure exactly if that is the answer, but हो भी सकता है. देखो ना कैसे करना है. आपको इतना तो समझ में आ गया that you need to go by the basics. You need to write the equilibrium. Correct? ठीक है. वाटर का इक्विलिब्रियम तो इग्नोर कर सकते हैं, बाद में चेक कर लेंगे. ठीक है, तो वाटर का छोड़ के दोनों एसिड का इक्विलिब्रियम लिख लिया. ठीक है. H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट सेम कर देने का है. तो दो वेरिएबल्स आ जाएंगे x और y, उनको सॉल्व करना है यूजिंग k1 एंड k2. So let's write down the expression of k1 and k2. This will be the exact expression, but ये तो difficult to solve है. What is it that we can now help us or help ourselves with? We can take alpha 1 to be much less than 1, यानी कि x is much less than c1. Right? एक ही approximation ले सकते हैं जो weak acid में हम लोग typically लेते हैं. और दूसरा क्या ले सकते हैं, that दूसरे का भी alpha is much less than 1, यानी कि y is much less than c2. राइट, तो ये c2 माइनस y को मैं c2 लिख सकता हूँ. राइट, तो ये दो इक्वेशंस हो गई. अब ये फेयरली सॉल्वेबल इक्वेशंस बन जा रही हैं. ठीक है, अपने अपने तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, चलो सॉल्विंग का पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ. इतना लिखो और आगे का सॉल्व करके बताओ मुझे. Sir, are you speaking? नहीं, मैंने कैलकुलेशन करने के लिए छोड़ा है ना यहाँ पे. Okay, sir. हुआ आप लोगों का कैलकुलेशन? x और y का वैल्यू आया? And H plus concentration will be x plus y. ठीक है. हाँ, ठीक है. इतना पार्ट क्लियर है?
देखो इक्वेशन सॉल्व आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, दैट इज नॉट अ चैलेंज, बट कैसे सॉल्व हुआ, आंसर मैच करा, वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, तो आज मैं यही तक ही पढ़ाना चाह रहा था। ठीक है, इसके आगे एक्चुअली जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नाउ सॉल्ट सॉल्यूशंस एंड सॉल्ट सॉल्यूशंस का पीएच कैलकुलेशंस। ठीक है, हमने एसिड सॉल्यूशंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसिड सॉल्यूशंस एंड करस्पॉन्डिंगली बेस सॉल्यूशंस एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेस सॉल्यूशंस का पीएच कैलकुलेशन देख लिया है, समझ लिया है, and now it is more about practice. So I'll be giving you questions to work on from the booklet itself. ठीक है, वो आप ट्राई करोगे। In the meantime, ठीक है, ये डेरिवेशन हो गया ना, दिस वाज अ डेरिवेशन, H plus का concentration रूट C1 K1 plus C2 K2, यही तो डिराइव करना था। जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है, अब इन द मीन टाइम आपके पास जो डाउट्स है वो आप पूछ लो, जो आप स्टार्टिंग में कह रहे थे, कुछ डिस्कस करना चाह रहे थे। हाँ, F So, can you once more share the recordings and the booklet of this topic on the group, please? एक मिनट, हाँ, क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। Sir, can you share the recording, previous recording and the booklet of this topic on the group? तो मुझे अलग से पिंग कर दो ना, मैं तुम्हें अलग से दे दूंगा, तुमने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया ना। हाँ सर, और वही पहले के टॉपिक्स जो जो हुए। वो सब तो मिलने, तुम्हें यूट्यूब पे सर्च करने पड़ेंगे, मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा, उस पर तुम सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएंगे रिकॉर्डिंग्स एक एक करके। ओके सर। ठीक है, एंड So can we leave? हाँ 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 बिल्कुल, डाउट नहीं है तो अभी। Bye. So thank you. Thank you, sir. Bye. हाँ, चलो बाय बाय। ठीक है, हाँ पूर्णा पूछ लो ना कौन से डाउट हैं आपके। FBO में 40 and 46। सर तो मैं मतलब जो नंबर पे आपको अभी भेजा था ना, वही नंबर मेरा है, तो उस पे ही आप लिंक शेयर कर दो यूट्यूब का। हाँ हाँ, तो मुझे पिंग जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस में खो जाएगा अदरवाइज। ओके सर। सर तो मैं वापस हाय भेजता हूँ तो फिर ये हो जाएगा। हाँ, ओके सर, थैंक यू, बाय। इसमें कहाँ अटक गया आयुष। अच्छा, लैंग्वेज इसका थोड़ा ट्रिकी रहा होगा। ठीक है, pH of ammonia solution if the acidic acid solution of equal molarity is 3.2, so basically Ka, ठीक है, is equal to CH3CO minus into H plus upon CH3COH, right, and Kb is equal to NH4 plus into OH minus upon NH4OH concentration. ठीक है, now if I divide the two, so Ka upon Kb, ठीक है, assuming dissociation constant are equal and molarity भी equal है ना, तो आप ऐसा सोचोगे यहाँ पर this Ka would have been equal to C alpha
into C alpha upon C1 minus alpha, and this Kb would have been equal to C alpha dash upon C1 minus alpha dash. In fact, let me not do it this way. मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ. आपको इतना बोला जा रहा है that Ka is equal to Kb, right? And concentration of CH3COH is equal to concentration of NH4OH. ठीक है? ठीक है? And based on this, what you can get is that H plus concentration in CH3COH solution will be equal to, और in fact चलो ठीक है, rather than all of this मैं और simple तरीके से बता देता हूँ. In CH3COH solution, H plus concentration will be root KAC. In NH4OH solution, OH minus concentration will be equal to root KBC, right? If K is equal to KB, implies H plus concentration in this solution is equal to OH minus concentration in this other solution, right? So if pH here is 3.2, यहाँ पर POH will be 3.2, or you can say pH will be 10.8. ठीक है? All right. Then 46th तो सिंपल है भाई. 46 में क्या करना है आपको? Dissociation constant of two acids HN HB is this much. Same molarity है, तो H plus is equal to root KC ना. तो जिसका K ज़्यादा होगा उसका H plus concentration ज़्यादा होगा, मतलब pH वैल्यू कम होगा. इसमें क्या करना था? ठीक है. Then FB होगा 55 and 57. 55 में तो यश आपको क्या करना पड़ेगा? वीक एसिड का अल्फा कम हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो अल्फा बढ़ जाएगा ना. अल्फा इज रूट के अपॉन सी, राइट? सो अल्फा बढ़ जाएगा. ठीक है. एंड H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू रूट के इंटू सी, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा. ठीक है. तो pH बढ़ेगा. K तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसका किसी लेना देना नहीं है. H plus concentration will decrease to 0.01 molar. ऐसा नहीं होगा ना. You will have to put the data and then calculate. How can you say it will decrease to 0.01 molar? Right? हाँ. इस वाले क्वेश्चन में आप देखो ना, ये थोड़ा टाइम में आपको समझ में आ जाएगा, but it isn't something which is that bad. Like HA aqueous is giving H plus aqueous plus A minus aqueous. This is given to you as K. Then आपसे पूछा है what will be its reaction with strong base. इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे आप? HA aqueous plus OH minus aqueous. This is a strong base. It is giving A minus aqueous plus H2O, right? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे पूछा है. मैं आपकी एक हेल्प कर देता हूँ, and figure out now by yourself if you can.
ठीक है, ट्राई करोगे? ऑल राइट। हाँ, अब नेक्स्ट पूर्णा का। ठीक है, बताओ पूर्णा, ये आपने केमिकल इक्विलिब्रियम के बुकलेट से पूछा ना? ओके, FbO का 85, FbO का 85 कहाँ गया? Let me find that out quickly. ये वाला इसमें लाइक जो K का एक्सप्रेशन है, ठीक है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, और यू कैन से Kp का एक्सप्रेशन है। ठीक है, Qp इज इक्वल टू Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ D का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ B, राइट? बाकी सब तो सॉलिड है। Now if I double the pressure of B, ठीक है, Qp gets disturbed and Qp has to again become equal to Kp. So if this is doubled, then this has to become √2 times ना, ताकि उसका स्क्वायर और ये कैंसिल आउट हो जाए। समझ में आया? If Pb becomes 2Pb and Pd becomes √2 Pd, Qp is still equal to Kp. Then लेवल 2 का 10th FBS में, FBS लेवल 2 10, ओके, इसमें आई थिंक अल्फा मच मच लेस देन 1 वाला अप्रोक्सीमेशन लगेगा। ठीक है, इट इज लाइक 0.25%, है ना? तभी आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज क्यूबिक वगैरह तो कहीं से सॉल्व हो पाना मुश्किल हो जाएगा ना। राइट, समझ में आया आपको? अच्छा, ये वाला नहीं है। कौन सा क्वेश्चन पूछा फिर आपने? FBS का ही तो पूछा ना, कहाँ गया? लेवल 2, लेवल 2 का 10, तो मैंने कौन सा कर दिया? लेवल 1। ओह, माय बैड। ओह, लेवल 2 का 10, ये तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का है। Didn't we do this question in the class as class example? I typically do this. देखो, जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है, ये तो सेपरेट इक्विलिब्रियम्स है। ठीक है, यहाँ पर A solid is becoming A dash solid plus H2S gas, ठीक है, right? And solid nothing, solid dash, solid double dash, I don't care, and this is say P, right? And this P is given to you as 50 mm Hg, right? The pressure over excess solid A is 50 mm Hg. Right? अच्छा नहीं, इनफैक्ट ये सॉलिड नहीं है, ये गैस है, माय बैड। तो फिर ये भी P, तो 2P इज दिस मच, राइट? P प्लस P,
P total, that is P plus P is this much. So KB कितना आ जाएगा? P square, that is 25 into 25 mmHg square, right? इसी तरीके से you will proceed for the other equilibrium also, right? When solved separately, right? आप इसी तरीके से इसको लिखोगे, and rather than A, this time it will be just say B. So ये B, ठीक है, and इसको आप small p या इनको P1 कह दो, ये P1 स्क्वायर, ये P2 हो जाएंगे, राइट? तो KB कितना आ जाएगा? ये 68 था ना, तो 39 का स्क्वायर, राइट? अब सेकेंड पार्ट में ये दोनों साथ में है, ठीक है? सेकेंड पार्ट में अभी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का केस हो गया है, ठीक है? सेकेंड पार्ट में कैसा बोला है? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डैश एंड B डैश इन वेपर फेज over a mixture of solid A and B. So that means it's a case of simultaneous equilibrium. So you have A solid giving A dash gas plus H2S gas, right? Solid 0 0, solid dash X and X, right? And at the same time you have B solid giving B dash gas plus H2S gas, solid 0 0, solid dash Y and Y. So you make sure that the common ion concentration is same throughout. और KB1 KB2 तो आपको पता पढ़ ही चुके हैं, तो अब आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, वंडरफुल। और जो P टोटल रहेगा उसमें डबल काउंट मत कर लेना H2S को, वो एक केयरलेस मिस्टेक स्टूडेंट्स कर देते हैं, ठीक है? तो थर्ड पार्ट पूछा है क्वेश्चन में, टोटल प्रेशर, डोंट डबल काउंट दिस H2S, क्या दो जगह लिखा हुआ है, ठीक है? देन लेवल 3 का क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4, ओके, लेवल 3 का क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 3 मैं नहीं करूँगा, इट विल बी टू मच, लाइक रियली टू मच। उसमें ऑल आई कैन गिव यू अ हिंट इज इन द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है? वेरिएबल ज्यादा रहते हैं, इक्वेशन कम बनती है, बट दे आर इन अ वे दैट दे कैन बी सॉल्व्ड फॉर अ न्यूमेरिकल आंसर, ऐसा हो जाता है उसमें, अदरवाइज इट्स अ डैम लेंथी क्वेश्चन, ठीक है? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का है वो, मतलब उसमें टू मच एफर्ट चला जाता है। इसमें व्हाट यू कैन डू इज इन दिस क्वेश्चन, फोर्थ वाले में आप नोटिस करोगे ना, के बहुत छोटा रहेगा, ठीक है? तो आप अकॉर्डिंगली आंसर लिख सकते हो ना, ये AgCN2 minus aqueous is giving Ag plus aqueous plus 2Cn minus aqueous, right? अब यहाँ पर बोला जा रहा है that we mixed 0.1 मोलर KCN, है ना? यहाँ से ये Cn माइनस आता है, and 0.03 मोलर Ag plus, right? AgNO3 से ये Ag plus आएगा ना, and we had nothing of this equilibrium as in this complex, तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, ये 0.1 माइनस 2x, 0.03 माइनस x, और ये x और k को अब आपको सॉल्व यूज करके x सॉल्व करना है, राइट? सो k इज इक्वल टू व्हाट, 4 into 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल टू 0.03 माइनस x, 0.1 माइनस 2x अपॉन x। क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व, तो इनफैक्ट क्वाड्रेटिक नहीं, क्यूबिक बनेगा, क्यूबिक बना के सॉल्व तो नहीं करोगे,
what is the approximation that is coming to your mind? Right, this is a very very small value, right? So इसका क्या हो सकता है, या तो न्यूमरेटर स्मॉल है या फिर denominator is extremely large. What is the possibility? Which is it that can happen? Can denominator be very large? Not really. It is the numerator which is going to be small. Numerator में दो parts हैं, ठीक है? Numerator small implies either 0.03 minus x approaches 0 or 0.1 minus 2x approaches 0. किसको मानेंगे हम लोग करेक्ट? इसको ना, ये लिमिटिंग रिएजेंट है ना, लिमिटिंग रिएजेंट विल ऑलमोस्ट गो टू कंप्लीशन ना. और अगर गलती से आप दूसरा मान भी लेते हो तो फिर आपका ये वैल्यू नेगेटिव आने लग जाएगी, तो आप समझ जाओगे कि अरे कुछ गड़बड़ हो गई. सॉल्व कर लोगे अभी? हो पाएगा पूर्ण आपसे? ओके ठीक है. देन कौन सा पूछा आप लोगों ने एक और लास्ट में? गेट इक्विप्ड का. गेट इक्विप्ड का सिंगल का सिक्स्थ. हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. दिस इज ऑल्सो डिफिकल्ट क्वेश्चन. इसमें भी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम आ जाता है. ठीक है, इसमें कैसा रहेगा, आप देखो पहले तो देयर इज ओनली NH4I का इक्विलिब्रियम. NH4I solid dissociates to give you NH3 gas plus HI gas. ठीक है, एंड कांस्टेंट प्रेशर 4p नॉट. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉलिड 0 0 सॉलिड डैश 2p नॉट 2p नॉट, राइट? implies इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी 4p नॉट स्क्वायर. ठीक है, बट नाउ, ठीक है, अब एक फ्रेश स्टार्ट ले लेना. डोंट linger on to the previous data. That is the mistake that happens in this question. Although it can be dealt with, but becomes a bit more messy. The hint here will be to take a fresh start at simultaneous equilibrium. Okay, so you will have not just this equilibrium but also the second equilibrium, right? So you have NH4I solid is giving NH3 gas plus HI gas, right? इसका Kp आपको पता है 4p नॉट स्क्वायर. ठीक है, and you have 2HI. 2HI gas is giving H2 gas plus I2 gas, right? and आप इसका Kp निकालना चाह रहे हो. ठीक है, so you start off by saying solid 0 0 solid dash x and x 0 0 x minus y, or in fact say 2y, y and y, and make sure that the common ion concentration is same throughout, right? And now you have two variable two equation. One is this one, that Kp1, which is 4p naught square, is equal to x into x minus 2y, and the second equation is p total is 5p naught, which will be equal to x plus x minus 2y plus y plus y. दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लेना, आ जाएगा पूर्ण. ठीक है, चलो ग्रेट. देन ऑल राइट, अब आप लोग नेक्स्ट क्लास अटेंड करो. टेक केयर, बाय बाय.